My lovely students, welcome to Mathological. This is the 24th session of our CAT 2026 DILR100 series. In this series, we are doing total 100 DILR sets for CAT 2026 examination. Start करते हैं session. And if you have not already subscribed to the channel, then make sure to subscribe to the channel. Also press the bell icon. और साथ में session को भी like कर देना. ठीक है? So this is the set. Pause the video and try to solve the set yourself first. Then only watch the solution. Okay. So to read the set first, in a school of 200 students, the physical education department of the school collected data regarding the participation of students in sports. Every student plays at least one of the three sports. यानी कि कम से कम एक स्पोर्ट तो जरूर खेलेगा, क्रिकेट, हॉकी एंड फुटबॉल. So there are basically 0 students who are playing none of the sports. And additional information is that number of students who play cricket, hockey and football are 110, 105, and 115 respectively. And number of students who play both cricket and football, cricket and hockey is 45, and both hockey and football that is equal to 50. तो क्वेश्चंस हमारे क्या क्या हैं? 6 क्वेश्चंस होते हैं. हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले ओनली क्रिकेट, यानी कि कुछ वैल्यूज हमारी ऐसी होंगी जो कि फिक्स होंगी, जो मिल जाएंगे हमें. और फिर कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स, यानी कि यहाँ पे हमें मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना पड़ेगा, ऑप्टिमाइजेशन अप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं. पहला क्वेश्चन करते हैं. सो 3 सेट्स ड्रॉ करते हैं फॉर क्रिकेट एंड हॉकी एंड फुटबॉल. C for cricket, H for hockey, and F for football. And cricket players are 110, hockey players are 105, and football players are 150. Also, those who play cricket and hockey is 45. This is not saying that only cricket and hockey, this is saying both cricket and hockey. So there might be some players who play cricket, hockey as well as football. Okay, so this 45 will basically be representing this region. Okay, so if we assume that students who play all 3 sports is equal to X, in that case, those who play cricket and hockey only will be 45 minus X. Okay, similarly, those who play football and hockey is 50. So by the same logic, if those who play all 3 games is X, so in that case, those who play football and hockey only will be 50 minus X. Because sum तो 50 आएगा. क्या यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है, now let us assume that those students who play cricket and football only, यानी कि belonging to this particular region, let us say that is equal to y. Okay, let us say that is equal to y. So अगर ये पार्ट हमारा y है, अब फोकस करो क्रिकेट वाले सेट पे. In this set, so except for the value that we need to find out, यानी कि students who play only cricket, बाकी वैल्यूज तो हमने अननोन मानी हुई है. ठीक है, सो ऐड ऑल द अदर वैल्यूज. तो समेशन क्या आ जाएगा भाई? ये पार्ट तो 45 ऑलरेडी है, दिस इज 45 एंड दिस इज y. तो 45 plus y are players who play at least 2 sports as far as in the set of cricket is concerned. ठीक है, so this portion here, this will be 110 total students who play cricket minus 45 plus y. So value क्या आ जाएगा? 110 minus 45 will be basically 65. So 65 minus y. Okay, by the same logic, now focus on set of football players. Set of football players total is 115 और बाकी का सम क्या आ रहा है? y plus 50, 50 plus y सब्ट्रैक्ट कर दो. 115 minus 50 plus y. So this will be again 65 minus y. यानी कि basically these two values, those who play only cricket and those who play only football, these will be equal. ये भी यहाँ से ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्योंकि y का वैल्यू कुछ भी होगा, but ultimately 65 minus y will be same. Now for the third set, which is for hockey, players who play only hockey, that will be equal to 45 minus x plus x, which is 45. तो 45 plus 50 यानी 95 minus x. So यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा हमारा 105 minus 95 minus x. So this will be equal to 10 plus x. The number of players who play only hockey, that is 10 plus x. अब हमें साथ में ये भी पता है कि every student plays at least one of the 3 sports. So those who play none of the sports is equal to 0. तो ये जो complete set है हमारा, this contains 200 students in total. And out of those 200 students, there are 0 students who play none of the sports. So outside these 3 sets, number is equal to 0. यानी कि इन सेट्स पे जो वैल्यूज हैं, इन सबका जो समेशन करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 200. अब यहाँ पे भी समेशन करने में देखो, ऐसा नहीं करना है सारी वैल्यूज को अलग लिखना है. कोई एक सेट पूरा पकड़ लो. जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने पकड़ लिया पूरा सेट क्रिकेट वाला.
ठीक है, इसका सम कितना है 110 ही आएगा, बिकॉज़ ऑब्वियसली हमने उसी हिसाब से कैलकुलेशन किया है। ठीक है, बाकी बाहर की वैल्यूज़ को देख लो, बाकी बाहर की वैल्यूज़ को कोई भी एक सेट पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। 110 हमने मान लिया क्रिकेट का टोटल सम प्लस बाहर की वैल्यूज़ क्या है हमारी 10 प्लस एक्स प्लस 50 माइनस एक्स, दिस विल बी इक्वल टू 60। 110 प्लस 60 प्लस 65 माइनस वाई, दिस टोटल इज इक्वल टू 100। बाकी 170 प्लस 65 विच इज इक्वल टू 235 माइनस वाई इज इक्वल टू 200, तो वाई आ जाएगा हमारा 235 माइनस 200 एंड हेंस वाई कम्स आउट टू बी 35। ठीक है, यही बात ऐसे भी देख सकते थे कि 110 सेट आ रहा है हमारा क्रिकेट के सेट में, तो उससे बाहर का नंबर कितना होगा, क्योंकि तीनों सेट के बाहर की वैल्यूज तो जीरो है, तो 110 के बाद 90 आना चाहिए, क्योंकि टोटल हमारा 200 है। अब 90 में हमारा 50 माइनस एक्स प्लस 10 प्लस एक्स, दिस इज 60, यानी कि 30 बच गया 65 माइनस वाई। इफ 65 माइनस वाई इज इक्वल टू 30, तो वाई इज इक्वल टू 35, और 65 माइनस वाई जब 30, हमसे क्वेश्चन यही तो पूछ रहा है 65 माइनस वाई का वैल्यू क्या होगा, दोज हू प्ले ओनली क्रिकेट, तो दिस विल इक्वल टू 30, आंसर विल बी 30। क्या अप्रिशिएट करवा रहे हैं? ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा कंप्लीट हो गया, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ से हमें क्या क्या वैल्यूज मिल गई हैं, हमें पता चल गया कि 65 माइनस वाई इज 30, सो दिस वैल्यू हियर, दोज हू प्ले ओनली क्रिकेट इज 30, दोज हू प्ले ओनली फुटबॉल दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 30, एंड वाई इज इक्वल टू 35, सो दिस वैल्यू हियर दिस इज 35। तो ये वैल्यूज तो फिक्स हो गई, एक्स की वैल्यू पता नहीं है, तो वहाँ पे हमारा सेट अभी क्लियर नहीं है, वहाँ पे एक्स की वैल्यूज वेरिएबल हो सकता है, बट वाई का पार्ट तो फिक्स है, दैट इज इक्वल टू 35। नाउ सेकंड क्वेश्चन, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग ओनली क्रिकेट इज सेम एज number of students playing all the three sports, then how many students play at least two sports? फिर से ड्रॉ करते हैं सेटअप हमारा एक बार। ठीक है, बट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे दोज हु प्ले एट लीस्ट टू स्पोर्ट्स, एंड कह रहा है क्वेश्चन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग ओनली क्रिकेट विच इज इक्वल टू 30, दिस इज 30, तो दिस इज सेम एज दोज हु प्ले ऑल थ्री स्पोर्ट्स। ऑल थ्री स्पोर्ट्स हमें क्या माना था, वैल्यू माना था हमने एक्स, यानी कि एक्स शुड बी इक्वल टू 30 फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, बिकॉज 30 is the number of students who are playing only cricket, so x will also be equal to 30। ओके, तो अगर x 30 आ रहा है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले एटलीस्ट टू स्पोर्ट्स का नंबर क्या आएगा हमारा, y तो 35 आ ही चुका था, and if x is 30, this value here was 45, so this will be 15। Similarly, this here was 50, so this will be 20। हमें क्या क्या सम करना है, those who play at least two sports, यानी कि we have to sum all these values, so the answer will be 35 plus 30 plus 15 plus 20, so that is 50 plus 50 100, so those who play at least two sports is equal to 100, out of which 70 play two sports exactly and 30 play all the three sports। Okay, next question, what is the maximum possible number of students who play exactly two sports, maximum possible number of students who play exactly two sports? Cricket, hockey, football, this number is 30 आया था, 30 आया था, ये नंबर 30 था, सो 30 30 35 x 45 minus x 50 minus x, and this was 10 plus x। Now question is saying maximize the number of students who play exactly two sports। ठीक है, so we have to basically maximize these two values, so what can be maximum possible value, x को 0 मान लें, पॉसिबल हो सकता है क्योंकि x कैन बी 0। ठीक है, सो x को 0 मान लें, बट हमेशा ये ध्यान रखना है कि x को 0 मान के हमें वैल्यूज पुट जरूर करनी है, सो दैट हमारा जो कंडीशंस है, कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई जरूर करना चाहिए हमारा जो फाइनल आंसर हो। सो वी कैन पुट x मिनिमम, क्योंकि x मिनिमम होगा, देन 45 माइनस x विल बी मैक्सिमम, सिमिलरली देन 50 माइनस x विल बी मैक्सिमम। एग्जैक्टली टू स्पोर्ट्स का वैल्यू क्या आएगा हमारा 35 प्लस 45 माइनस x प्लस 50 माइनस x, so this sum is equal to 35 plus 45 which is 80 plus 50 130, 130 minus 2x, and this we have to maximize, and for this to be maximum we can put x equal to 0। ठीक है, x को 0 कर दोगे, x सब्ट्रैक्ट हो रहा है, अगर हमने x equal to 0 पुट किया, so this answer comes out to be equal to 130 if x is equal to 0, so that should be the maximum value। बट एक बार चेक करना पड़ेगा कि 130 के सारे कंस्ट्रेंट जो हमारे सेटिस्फाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहा है। अगर हमने x को 0 पुट किया, तो 45 माइनस x विल बी 45, 50 माइनस x विल बी 50, एंड 10 प्लस x विल बी इक्वल टू 10 प्लस 0 यानी कि 10। तो सारे सेट पे वैल्यूज जो हमारी सेम आनी चाहिए।
ठीक है, अब यहाँ तो क्रिकेट वाले सेट में तो प्रॉब्लम नहीं आएगा क्योंकि वहाँ तो पहले भी हमारी चीज़ें सही आ रही थी। हॉकी में भी चेक कर लो 45 + 50 95 + 10 105। तो यस दिस इज आल्सो करेक्ट। ये भी सही है और बाकी सारी चीज़ें भी सही आ रही हैं। तो हमारा आंसर आएगा 130 इन दिस केस। दैट द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स विल बी इक्वल टू 130। ओके, क्लियर है? ठीक है, यही चीज़ है और भी कैसे समझ सकते थे? एक बार वो भी देख लेते हैं। तरीका इस क्वेश्चन में तो चीज़ें बहुत सारी चीज़ें फिक्स हो रही थी, बट अदरवाइज़ देखो हम ये माने कि दोज स्टूडेंट्स हु प्ले एग्जैक्टली वन स्पोर्ट दे आर बिलोंगिंग टू दिस सेट रिप्रेजेंटेड बाय दिस सेट, ठीक है, ओनली वन स्पोर्ट। Similarly, those who play exactly two sports, any two sports, but exactly two sports out of cricket, hockey, and football, those will be belonging to this set. And similarly, those who play all three sports will be represented by this set. Okay. So sum of all these sets will be equal to 200 because सारे स्टूडेंट्स कोई ना कोई एक गेम तो खेलते ही हैं. So sum of all these sets is equal to 200. बट अगर हम क्रिकेट प्लस हॉकी प्लस फुटबॉल करते हैं, क्रिकेट प्लेयर्स आर 100, हॉकी प्लेयर्स आर क्रिकेट प्लेयर्स आर 110, hockey players are 105 and football players are 150. So if we add students who play cricket plus students who play hockey plus students who play football, अगर हम इन सबका सम करते हैं so 110 plus 105 plus 115. तो इस केस में क्या होगा? Those who play two sports will be counted twice, those who play three sports will be counted thrice. So that is why यहाँ पे क्या होगा? First plus 2 times second plus 3 times third, this will be equal to the sum of these values which is equal to 330. अब सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो, सेकंड माइनस फर्स्ट करो तो रिजल्ट हमें मिल जाएगा second plus 2 times third, this is equal to 130. Okay, second plus 2 times third, this is equal to 130. और क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि हमें क्या करना है, हमें अल्टीमेटली एक सेकेंड उड़ गया सारा, कोई बात नहीं दोबारा से लिख लेते हैं. ठीक है, हमारा इक्वेशन बना था सेकंड प्लस 2 टाइम्स थर्ड, दिस वाज इक्वल टू 130. ओके, ठीक है. अब अल्टीमेटली सिंस वी हैव टू मैक्सिमाइज दोज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले एग्जैक्टली टू स्पोर्ट्स, सो दिस वैल्यू वी हैव टू मैक्सिमाइज. सो कब मैक्सिमाइज होगा? ऑल थ्री स्पोर्ट्स प्लेयर्स को हम जीरो कर दें, तो इन दैट केस दिस विल बी मैक्सिमाइज, यानी कि 130 आ जाएगा, 130 आ जाएगा. ठीक है, सो 130 कुड बी मैक्सिमम वैल्यू, बट हमेशा लास्ट में वेरीफाई जरूर करना है. दोबारा से बनाना पड़ेगा क्योंकि अभी तोड़ गया है सारा के सारा. ठीक है, सो अगर हम ऑल थ्री को जीरो कर दें, दिस इज इक्वल टू जीरो, एंड दिस इज इक्वल टू जीरो, तो हमारी बाकी वैल्यूज आ जाएंगी 45 50, this will be 45, this will be 50, this here will be equal to 10, and that case this value, बाकी सारी वैल्यूज तो फिक्स ही थी 35 30 एंड 30. तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमारी सारी वैल्यूज मैच कर रही हैं. ठीक है, तो ये वैल्यूज पुट करने के बाद में हमारा क्रिकेट एंड हॉकी एंड फुटबॉल का जो नंबर्स आ रहे हैं वही सेम नंबर्स आ रहे हैं, कहीं पे कोई कॉन्ट्रेक्शन नहीं आ रहा है. तो यस दिस विल बी द आंसर. ठीक है, 130 हमारा आंसर हो जाएगा. दोज हु प्ले एग्जैक्टली टू स्पोर्ट्स विल बी इक्वल टू 130 मैक्सिमम वैल्यू. ठीक है, अगर यहीं पे क्वेश्चन से पूछे कि व्हाट विल बी मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू ऑफ दोज हु प्ले एग्जैक्टली टू स्पोर्ट्स, पॉज करके थिंक अबाउट इट कि मिनिमम वैल्यू क्या होगा. ठीक है, मिनिमम वैल्यू क्या होगा? अब यहाँ भी हम सोच सकते हैं कि चलो ठीक है, सेम लॉजिक से हम कहें कि इसको जीरो कर दो, दिस कुड बी जीरो, बट अगर ये जीरो हो जाएगा तो 2 टाइम्स द थर्ड, सिंस दिस इज जीरो, तो इक्वेशन हमारा क्या बन जाएगा, क्योंकि सेकंड का वैल्यू तो जीरो हो गया, तो जीरो प्लस 2 टाइम्स द थर्ड, दिस इज 130. सो दैट एम्प्लाइज दैट 2 टाइम्स द थर्ड इज 130, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले ऑल द थ्री स्पोर्ट्स विल बी इक्वल टू 130 by 2 व्हिच इज इक्वल टू 65. इजंट इट सो? अगर 65 वैल्यू पॉसिबल होगा तो फिर हमारा जीरो आंसर हो जाएगा कि दोज हु प्ले ऑल एग्जैक्टली टू स्पोर्ट्स, मिनिमम वैल्यू ऑफ दोज स्टूडेंट्स विल बी इक्वल टू जीरो. बट क्या ये पॉसिबल होगा, ये भी तो क्वेश्चन है. क्योंकि देखो यहाँ पे अल्टीमेटली इन दिस केस अगर हम 65 करते हैं, कैन दिस वैल्यू बी 65? दिस कैन नॉट बी 65. व्हाई? बिकॉज टोटल सम ऑफ दोज हु प्ले क्रिकेट एंड हॉकी इज 45. ठीक है, जब टोटल सम ही 45 आ रहा है तो दिस वैल्यू हियर कैन नॉट बी मोर देन 45. सिमिलरली the students who play hockey and football, their sum is 50. So this value definitely, the value here has to be less than 45. ठीक है, less than equal to 45 and less than equal to 50.
तो कंस्टेंट क्या होगा अल्टीमेटली, दिस हैज टू बी लेस देन इक्वल टू 45, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दोज हु प्ले ऑल थ्री कैन बी 45, बट 45 से बड़ा वैल्यू नहीं हो सकता। तो इन दिस केस हम यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 45 पुट कर सकते हैं, उससे बड़ा वैल्यू पुट नहीं कर सकते, यानी दिस 45 into 2 इज 90, तो बच जाएगा 40, हमारा 40 बच जाएगा, यानी कि 130 इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू of those who play exactly two sports and 40 is the minimum possible value of those who play two sports. क्या क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the minimum possible number of students who play exactly one sport? Minimum possible number of students who play exactly one sport. This is 30 for cricket, hockey, football. This value is 35. This is also 30. This was 10 plus x. So minimum possible value for those who play exactly one sport. क्या आएगा? 30 plus 30 ये तो फिक्स्ड है. This is 10 plus x. So sum will be 30 plus 30 plus 10 plus x. And this has to be minimum. And this is equal to 70 plus x. मिनिमम कब होगा? जबकि x मिनिमम हो, x मिनिमम हो, और x मिनिमम कैन बी जीरो, ऑलरेडी हम पीछे क्वेश्चन में देख चुके हैं, ठीक है। सो x कैन बी जीरो, x इक्वल टू जीरो पुट कर दो, तो दिस मिनिमम विल बी इक्वल टू 70 व्हेन x इज इक्वल टू जीरो। ओके, x जीरो आ जाएगा, तो दिस विल बी हियर 10, क्योंकि x जीरो है, और दिस वैल्यू हियर विल बी जीरो, दिस विल बी 45, दिस विल बी 50। So answer is 70 for this question. Next one, if the number of students playing exactly one sport is the maximum possible, so what is the number of students playing both cricket and football? Number of students playing both cricket and football, ठीक है। If number of students playing exactly one sport is maximum possible. लास्ट क्वेश्चन हमने क्या किया था? हमने किया था मिनिमम पॉसिबल, अब हमें कहना है मैक्सिमम पॉसिबल। ओके, so this sum was 70 plus x, those who play exactly one sport, and we have to maximize this. अब x का वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकता है? सिंस x इज नंबर ऑफ प्लेयर्स हु प्ले ऑल थ्री स्पोर्ट्स, अब इसको मैक्सिमाइज करना, ऑलरेडी हम देख चुके हैं x मैक्स वैल्यू कितना आ रहा था हमारा x का 45, ऑल थ्री एट मैक्स कैन बी 45, तो पुट कर दो, तो x इक्वल टू 45 पुट कर दो, तो इफ दिस वैल्यू इज 45, दिस विल बी 0, दिस विल बी 5, और क्वेश्चन पूछा है हमसे कि दोज हु आर प्लेइंग बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। ओके, तो दिस इज 35, दिस इज बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, क्योंकि ओनली नहीं लिखा हुआ है, तो दिस सम विल बी 80, आंसर विल बी 80 इन दिस केस। क्या क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the difference between maximum and minimum possible number of students who play only hockey? Maximum and minimum possible number of students who play only hockey. Okay, so ऑलरेडी हम देख चुके हैं ओनली हॉकी वाले केस में क्या आएगा, दिस वाज 10 प्लस एक्स, ये वैल्यू हमारा 10 प्लस एक्स था, ठीक है, 10 प्लस एक्स और ओनली हॉकी, तो इट विल बी मिनिमम व्हेन एक्स इज मिनिमम एंड मैक्सिमम व्हेन एक्स इज मैक्सिमम, एक्स मिनिमम इज इक्वल टू 0 and x maximum is equal to x equal to 45. So minimum will be 10 plus 0 which is equal to 10, maximum will be 10 plus 45 which is equal to 55. क्वेश्चन में डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस विल बी बेसिकली डिफरेंस ऑफ वैल्यूज ऑफ x which is equal to 45. So answer for the question will be 45 in this case. क्या ये पार्ट क्लियर? ठीक है, so this will be our answers for all these questions given in this particular set. ठीक है, इस पर्टिकुलर सेट को थोड़ा सा इजी रखा था सो दैट तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग पहले इंप्रूव हो, फिर बाद में कुछ अच्छे सेट करेंगे, वेन डायग्राम पे बेस्ड, सेट थ्योरी पे बेस्ड। आई बिलीव कि सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे और कहीं पे भी कोई डाउट नहीं रहा होगा, फिर भी कहीं पे छोटा मोटा भी डाउट रहता है तो कमेंट जरूर मेंशन करना। सेशन कैसा लगा जरूर अपना फीडबैक देना, दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। और साथ में यही बताना कि तुमसे कितने क्वेश्चन अपने एंड पे खुद सही हो गया था और कहीं पे तुमसे एरर हुआ था या नहीं हुआ था, कितना टाइम लगा, बिकॉज दिस वॉज अ वेरी डुएबल सेट इन एग्जाम कंडीशन ऑल्सो। ठीक है, इतना ही रखते हैं सेशन में, एंड इफ यू लाइक दिस सेशन देन मेक श्योर टू लाइक द सेशन एज वेल, हिट द लाइक बटन और साथ में अपना फीडबैक जरूर देना। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप रनिंग।